Okay. So yesterday we started properties. Okay. The first property we proved that air occupies space. So what was the second property? Bache, am I audible? Am I audible? आवाज आती है मेरी? नो जवाब. चलिए. Okay, thank you. Got the messages. Okay, beta. So, what is the second property of air? Air has weight. Yeah, air has mass. So, how we will prove it? आज हम करने वाले हैं air has weight और air has mass. हाँ जी. Yes, अरमान. अब टाई करने के बाद what will you observe? That the balloon which is inflated very right, very right. अच्छा चलो. Okay students. Okay, pay attention. Suppose how we have to prove that air has mass or air has weight. We have to take one stick, tie a thread in the middle. ये हमने thread ले ली, इसको tie कर लिया, right? Then students, what we have to do? Take a deflated balloon and tie another inflated balloon. This is first step. Now in the second step, what we will observe, if this is a stick, so what will happen? This stick, it will become like this. ऐसे हो जाएगी. This is the middle. ये है हमारा deflated and this is inflated. It will come down. Why it will come down? Because the thing which is heavier, it comes down and the lighter thing remains up on a balance, physical balance, right? So why it come down? Because it is heavier than this. So why it is heavier? What is there inside it? Air. It means air has, right? अगर ये नहीं करनी तो और भी एक सिंपल एक्टिविटी है, बलून वाली ही है. टेक अ डिफ्लेटेड बलून, वेट. ठीक है. नाउ नोट डाउन द रीडिंग. आफ्टर दिस inflate it with the air. Now wait. Note down the reading. The difference you will see. The balloon which is inflated has more weight, right? Why? What is there inside it? Air is inside it. As the balloon with air has heavy weight, means air has weight. तो किसका weight हो गया वो? Air का. Is that clear? Now coming to third. Third property क्या है? What is the third property? It supports combustion. Supports combustion or burning. What is the meaning of combustion? Burning. How does it support? How will you prove that air supports burning? बस इन दोनों को ही आता है और किसी कोई नहीं बता सकता. सारी क्लास में 2 बच्चों ने हाथ खड़े करने हैं.
Raj Aryan will answer. Speak loudly. Inverted. Water. Glass. हाँ. हाँ. In an improvised way. Jalash. Loudly. वाई प्रूव कैसे हुआ, रीजन तो बताया ही नहीं. यहाँ पे नंबर कटते हैं, फिर हम पेपर में बोलते हैं मैडम मैंने तो यही लिखा था. एक्टिविटी करी, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन. एक इधर से पूछ ले. माधव 6 थे. माधव 6 थे. Yes, ma'am. We can show that air supports burning by a small activity. Take 2 candles and a matchstick. Then light up the 2 candles and put a tumbler on one of the candles and then observe. You will see that the candle. After some time, you will observe that the candle with the inverted tumbler on it will cut off. This is because What it will cut off? माधव क्या कट ऑफ हो जाएगा? Ma'am, it will blow off, and this shows that air supports burning because No. when we put Again answer is not clear. Please pay attention. आपको कैसे देना है? आप सिर्फ उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो. Why you are not giving the reason? This is very important. Take 2 candles, fix it on the table, burn them, invert a tumbler on one of the candles. After some time, you will see that this will stop burning. Why it will stop burning? Because now the air supply from outside is cut off and whatever air is present inside the tumbler is used up for burning. And this candle, it is getting the continuous supply of air. This shows that air is supporting the burning. Right? चलिए next. Air exerts pressure. Who will prove this activity? Air exerts pressure. Wait, और कोई बच्चा? कोई बताना चाहता है? Yes, हरमन. Now after that, close the bottle cap. Now you will see that the water will not flow out. This shows that air exerts pressure. Improvised way. Anyone else? Devang. Take 2 candles. Take 2 candles and fix it on the table. Then light them up. दिमाग हम एयर एक्सर्ट प्रेशर को प्रूव कर रहे हैं.
सपोर्ट बर्निंग तो कब का खत्म हो गया. How will you prove air exerts pressure? Do you know the answer? Yes, ma'am. हाँ जी. Fill a tub with the water. Hmm. Fill a tub with water and take a empty tumbler and then take a empty tumbler and then and then put it up. बेटा ये एयर ऑक्युपाइज स्पेस है, राइट? तो थोड़े से अपने फंडास क्लियर करो. जसलीन. Yes, ma'am. हाँ जी. Take an empty water bottle and crush it. Take an empty water bottle and crush it. Now quickly close the bottle and the water bottle will not come back to its original shape. Now open the water bottle and it will come to its original shape. This is because after we crushed it, the air escaped out and air could not enter and exert pressure when we closed the water bottle. But when we opened it, the air exerted pressure, and this is why it came back to its original shape. Right, very right. Along with this, one more easy one you can do, that is take a tumbler of water, fill it with water, right? Fill that tumbler with water. Now put the piece of cardboard on that tumbler. Press it with your hand like this, right? Now, after some time, after pressing it with your hand, slowly invert it upside down. अब कार्डबोर्ड आ गया नीचे और ग्लास को आपने ऊपर से पकड़ा हुआ है. Now slowly remove your hand. What you will see? Water will not come out. Cardboard will not move. Why? Because the pressure is exerted by the air. Right? It shows air exerts pressure. Right? ये फिफ्थ में करी हुई है एक्टिविटीज. Is that clear? You are not feeling okay today. Why? Are you okay? No, not looking like. Is there any problem? No, there is something. Come here. Overeat. Mind your language. चुप. नहीं, ओवर ईट करने से आपकी हेल्थ फेस को क्या हो जाता है? Then why do you overeat if you know this? No. But fix your diet then. Because I don't think you are okay. मुझे ऐसे लग रहा है you are physically present here but not mentally. Why? Is there something running in your mind? You can open up. Are you sure? Then concentrate. Okay? You are not here in the class mentally. Okay, students. Yes, Savya? Ma'am, please repeat the activity that is Yes, air beta. exert. Yes. Yes, beta. Yes, students, take a glass, fill it with water. Now put a small piece of cardboard on that glass. Put the hand over that cardboard piece, that so that pressure is exerted. Now invert it upside down. After some time, remove your hand. What you will see, you can remove cardboard also. Water will not come out. Why? Because the pressure is exerted by the air. As a result, when more pressure is exerted, water will not come down. But after some time, when the pressure of the water will become more high, क्योंकि upward भी तो pressure exert कर रहा है, then due to that क्या हो रहा है? जैसे मैंने ये ग्लास को उल्टा कर दिया, right? अब इसके अंदर ये पानी है, ओके? अब नीचे से प्रेशर लग रहा है एयर का जो मैंने दिया था, ठीक है? अब ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है? इधर भी एयर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है? अब वाटर का प्रेशर भी है. When this pressure will exceed this pressure,
तो वाटर विल फ्लो डाउन. जब तक ये प्रेशर अभी तक लगा नहीं है तो ये प्रेशर इसको बैलेंस कर रहा है, उतनी देर तक पानी नीचे नहीं आ रहा. ग्रेविटी को हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट. इन सम केसेस वी कैन इग्नोर द ग्रेविटी, अदरवाइज इसीलिए वो जल्दी जल्दी गिर जाता है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसको खींच रही है. ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Okay, students. Now, students, next is cycles. What is the use of oxygen? What is the use of oxygen? एक ही साइकिल करवाऊंगी आज, कौन सा करवाऊं बता दो. पहले ऑक्सीजन ही शुरू कर लें. ओके, एक बार सारे साथ दोबारा ड्रॉ करेंगे. कॉपीज में गलत बना के ला रहे हो. ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन, और सारे सिंबल्स गलत नोट कर रहे हो. एज अ रिजल्ट वो गलत हो जाएगा, राइट? हाँ जी, लेट अस स्टार्ट विद ऑक्सीजन साइकिल. इसको कैसे शुरू करना है, कैसे याद करना है, क्रैम करने की जरूरत नहीं है. Oxygen is present in atmosphere, right? This atmospheric oxygen, it performs two functions. One is respiration and other is कंबस्टन. दो फंक्शंस परफॉर्म करती है, राइट? कंबस्टन किसकी होती है? फ्यूल्स की. और रेस्पिरेशन कौन करता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. देन कंबस्टन का बाई प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसे रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये है इसका बाई प्रोडक्ट. राइट? Now, this carbon dioxide is used up by plants. कहाँ यूज करते हैं? In the, इसको गोल सा बना लो भैया, साइकिल सा लगे ऐसे. In the, कहाँ यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस. नाउ फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या आता है? ऑक्सीजन. इज दैट क्लियर? यस हरमीत सिंह, योर डाउट? यस मैम. मैम जो एक्सर्ट प्रेशर वाली मैम एक्टिविटी थी मैम, उसमें मूव अपसाइड डाउन, मूव योर हैंड एंड मूव योर हैंड एंड कार्डबोर्ड वाटर विल नॉट come down when pressure will take place on the glass, then water will come out. मैम ये सही है? बिल्कुल ठीक है. चलिए, now note this, do this, hurry up. Everyone will do it. इधर आओ हिमालय. Are you really? लग नहीं रहा मुझे. ठंडा क्यों हुआ पड़ा? कोई प्रॉब्लम है फिजिकली? हाँ मैम, आज मैं उठा भी जल्दी था ना. श्योर? 4 o'clock उठा था इसलिए.
मैं भी उठी हूँ 5 o'clock। मैं 1:30 बजे सोई थी। मैं पेपर बना रही थी, टेस्ट बना रही थी। आप हाँ क्यों, आज क्या था, कहाँ पे? ओके ओ बड़ा करो। चलो ठीक है, काम कर लो। हरी आप। बच्चे, you know from Monday timings are going to change of your classes. Yes students, Monday से आपकी क्लास 9:30 पे लगा करेगी, right? So come and join accordingly. हाँ 8:40 का टाइम है ना स्कूल का, तो वैसे ही 8:55 पे फर्स्ट लेक्चर शुरू हो जाएगा। आपको आया तो हुआ टाइम ग्रुप में, और आपका ऑफलाइन टेस्ट यही होगा, रिवीजन टेस्ट। ओके, सो ब्रिंग योर शीट्स एंड ऑल, कम प्रिपेयर्ड। कौन से बच्चे आ रहे हैं इतनी लेट? यस स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, गेटिंग साइड, नोटेड डाउन, हरी आप। डन। ओके हाँ जी, नोटेड डाउन। अगर किसी को कोई डाउट है तो आस्क मी राइट नाउ। हाँ जी, कोई बात नहीं, लेट अदर्स डू। हरी आप। जो प्रोडक्ट रिलीज होता है, साथ में जो प्रोडक्ट आता है, राइट? Okay students, if this is done, shall I start with the nitrogen cycle? Please नाइट्रोजन साइकिल अच्छे से बनाना, बिकॉज आपकी कॉपीज बहुत ज्यादा गलत बना के भेज रहे हो। कुछ बच्चे तो ब्लॉक्स ही आगे पीछे कर देते हैं, एज अ रिजल्ट वो ठीक ही नहीं होता।
साइकिल को साइकिल की तरह बनाओ। हाँ जी, नाइट्रोजन साइकिल बनाने का ना आपको एक मेथड बताने वाली हूं मैं, उसको याद कर लो कैसे बनाना है। यस स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। पूरा अपने पेज पे बनाना, उल्टी कर लो कॉपी। मेक 6 boxes, 3 up, 3 डाउन, बराबर 6 बॉक्सेस बनाने हैं आपने एक दूसरे के नीचे, लाइक दिस। बना लिए? हरी आप मेक 6 बॉक्सेस। ऐसे ही बना लो पहले, बाद में स्केल्स यूज करके बनाना, आज लेक्चर ओवर हो जाएगा। हरी अप। नाउ स्टार्ट मेकिंग द एरोज। हाथ नहीं उठाना, बस इस तरह एरोज बनाई जाने हैं। बन गए? बन गए एरोज? अब हमने यहां पे हाथ उठाया, देखिए जरा, ऐसे करा था, हाथ नहीं उठाना अभी भी। अब ये बनाना है, ऐसे बना लो। बना लिया? अब हाथ नहीं उठाना, यहां से ऐसे ले जाओ, बना लिया। यहां पे भी हाथ नहीं उठाना है, ये ट्रायंगल बना दो इस तरह, ये एक ट्रायंगल बन गया। ओके, अब हम फिल करेंगे। इज दिस क्लियर? ट्राई एरोस क्लियर हो गए? नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, प्लांट्स, वहां से किसके पास गई? एनिमल्स। अब यहां से अमोनिया फ्रॉम एयर, नाइट्राइट्स फ्रॉम एयर, नाइट्रेट्स। अब भरिए एरोज। नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर से प्लांट्स के साथ पास कैसे जाती है? फिक्स होती है, प्लांट्स फिक्स करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बायोलॉजिकल फिक्सेशन। अब प्लांट्स से एनिमल्स के पास कैसे पहुंची? न्यूट्रिशन, खाने में। अब खा के एनिमल्स ने क्या किया? एक्सक्रीशन, डेथ, डिके। सिर्फ एनिमल्स की नहीं होती, प्लांट्स की भी होती है। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्योंकि अमोनिया बन रहा है, अमोनिफिकेशन। राइट? अमोनिया से नाइट्राइट्स बने,
नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन 2 बार होती है। नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स बने, ये भी नाइट्रिफिकेशन। अब ये नाइट्रेट्स प्लांट्स ने वापस लिए, सॉइल में से लिए ना, ये सारा कुछ सॉइल में हो रहा है, उसको बोलते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन। अब नाइट्रोजन कहां से ली थी? एटमॉस्फेयर से, कुछ वापस भी जानी है, तो ये जो एरो वापस जा रहा है ऊपर, उसको लिखेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। ये जो आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था, एक फिक्सेशन और होती है डायरेक्ट लाइटनिंग के साथ जब नाइट्रेट बनते हैं, दैट इज फिजिकल फिक्सेशन। इसको लिखो फिजिकल फिक्सेशन। बन गया हमारा नाइट्रोजन साइकिल। क्या मुश्किल है इसमें, कॉपियों में भी नहीं बनता आपसे, बनाइए। हाँ जी हरमीत, एनी डाउट? इजी हो गया? अब इस तरह मार्क्स लगते हैं आपके। हाँ जी बेटे। मैम जो नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर के नीचे जो फिजिकल फिक्सेशन और डीनाइट्रिफिकेशन है मैम, मैंने उल्टा बनाया है मैम। मैंने जो ऊपर एरो जा रहा है मैम, मैंने फिजिकल फिक्सेशन की जगह बनाया और मैंने डीनाइट्रिफिकेशन की जगह फिजिकल फिक्सेशन। गलत है वो, तभी मैंने कहा ना आप गलत करते हो। डीनाइट्रिफिकेशन ऊपर को होएगी, तभी नाइट्रोजन जाएगी एटमॉस्फेयर में, और फिजिकल फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स बन गए, वो एरो नीचे आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। मैम मैंने किया वैसे ही है मैम मैंने किया वैसे ही है, और मैम मैंने बस एरो, मैम मैंने जो डीनाइट्रिफिकेशन है ना मैम, मैं एरो सही लगाए हैं मैम, एरो सही लगाए हैं, डीनाइट्रिफिकेशन फिजिकल फिक्सेशन की जगह लिख दिया है। कोई बात बेटे, मेरी बात सुनो, जहां पे भी डीनाइट्रिफिकेशन लिखोगे उसका एरो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? चाहे इस तरफ लिखो चाहे इस ओके मैम, हाँ। थैंक। हरी आप गुड रख दो। इसमें ना 7th की कॉर्डोवा पड़ी है, वो निकाल दो। हरी आप स्टूडेंट्स, the class is going to be over.